Good evening, friends. I call the meeting of LCIF Club Coordinator Schooling for District 322G to order. On behalf of District 322G, from each and every lines of my District 322G, I welcome, as Sangeeta is not joined, but I welcome our beloved past international Director, Madam Sangeeta Di. I welcome past international director, LCIF constitutional area leader, our GS Hora sir. I welcome LCIF deputy head resource mobilization, Miss Rasmi Wills ma'am. I welcome madam to district 322G. I welcome our LCIF area leader, PMCC, our Rajiv Bhaiya, Rajiv Lochan sir. I welcome sir. I welcome on behalf of my district, MD 322G campaign 100 coordinator, our PMCC line Kamal Kedia. Sir, I welcome you on behalf of district 322G. I welcome our district, our own line LCI coordinator, PMCC line MP Agarwal ji. MP Agarwal sir, I welcome on behalf of district 322G as our area as our district coordinator. I welcome our VDG1 line Subhankar Sen. I welcome our VDG2 line BS Rathore ji. And I welcome all the lines from other districts and lines from district 322G and Leos and friends. Today, as you know, we have with our great leaders from our multiple 322. Friends, regarding LCIF, just simply as we have the leaders with us, so definitely we want to listen our leaders, but simply I want to say regarding LCIF that LCIF sir is our foundation. ये अपना फाउंडेशन है. जब भी इमरजेंसी होती है हमें $10,000 तुरंत मिल जाता है. जैसा कि आपको पता है कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो इन ए वेरी शॉर्ट टाइम हमें $10,000 हमेशा हमें LCIF से जब भी हमने अप्लाई किया हमें तुरंत मिल जाता है. हम देखिए ये फाउंडेशन अपना है और जब किसी अपना की जरूरत होती है अपनों से ही सपोर्ट मांगा जाता है. तो हमारी डिस्ट्रिक्ट और हमारे लीडर्स हमारे बीच है. इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट हमेशा LCIF और कैंपेन 100 के लिए तैयार है. हमारे लायंस जिस तरह उन्होंने विद इन दिस 2 months उन्होंने जो सपोर्ट और जो हमारा जो सपोर्ट किया है उसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपको बताएंगे. एंड डेफिनेटली इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूंगा कि टुडे वी वांट टू लिसन आवर लीडर्स. तो आई रिक्वेस्ट आवर एरिया लीडर LCIF constitutional PID line GS Hora sir to please sir the floor is yours. Please address the house. Thank you GS Hora sir. Thank you District Governor Rajkumar Ingania. Thank you sir. Area leader Rajiv Lochan, multiple coordinator Kamal Kedia. I also see BL Banka here, multiple coordinator. Nice. District coordinator MP Agarwal PMCC, Rasmi ji, Vice Governor Rathore ji, and my fellow lions. It's my pleasure to join here in 322G for talk on campaign 100. आज हम LCIF की जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उनको लेके बात करें, क्लब कोऑर्डिनेटर्स उनको लेके बात करेंगे. हमारे जो लीडर हैं they know well about the campaign, they know well about the LCIF, but now this is time we have to reach to the club level. Each and individual lion members, the club coordinators are great strength for the team of campaign 100 and LCIF, and they should reach to every club, every member of the club. उनको ये पता होना चाहिए LCIF क्या है. जैसे राजकुमार जी ने कहा हमारा ओन फाउंडेशन है. We must feel proud out of it. How much work the LCIF is doing. मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा. I'll just give my few remarks only. You will see when the presentation is made what kind and what volume of work LCIF is doing and how we can build this foundation further कि हमारा जो काम LCIF कर रहा है ये करता रहे. This district had been a great beneficiary of LCIF. We have many project. आपके यदि अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो डिवीजन से पहले के थे उसमें आपका गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, then डिब्रूगढ़ आई हॉस्पिटल, I mean
Jorhat Grader for the blood bank. There are many projects which have been funded. और भी आपके यहाँ बहुत एन इमरजेंसी ग्रांट यू हैव बीन गेटिंग एवरी ईयर. हर साल आपको इमरजेंसी ग्रांट मिलता रहा है. जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी हुई है, चाहे कोविड हो, चाहे फ्लड हो, जिस तरह भी इमरजेंसी ग्रांट की जरूरत है, यू ऑलवेज हैव बीन गेटिंग $10,000 इमरजेंसी ग्रांट. ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये सारी इंडिया में, सारे मल्टीपुल में, सारी दुनिया में एलसीएफ द्वारा ग्रांट दिए जाते हैं. हम जो पैसा देते हैं वो बहुत अच्छे काम में और बहुत पर्पजफुली यूज होता है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फाउंडेशन कि हमारा एक एक पैसा यहाँ काम लगता है और वो मल्टीप्लाई होता है. उसमें लोकल कंट्रीब्यूशन ऐड होता है, उसमें लोकल डोनेशंस ऐड होते हैं और आपका पैसा कहीं ना कहीं अच्छे सर्विस प्रोजेक्ट में जाता है. वी आर मेकिंग लॉट ऑफ डोनेशंस एट डिफरेंट प्लेसेस. एट द लायंस यू आर ऑल्सो दी लीडर्स इन द सोसाइटी. और सोसाइटी में जब भी कोई अच्छा काम होता है, लायंस मेंबर का वहाँ कंट्रीब्यूशन मिलता है. वी शुड मेक कंट्रीब्यूशंस टू कैंपेन 100, टू एलसीआईएफ. ये रेगुलर कंट्रीब्यूशन की बात है, लेकिन अभी जो कैंपेन 100 जो चल रहा है, दिस इज अ फोकस टाइम कि हमें खास करके इस पीरियड में वी हैव टू डू समथिंग मोर इन दिस पीरियड. इट मे बी थ्रू मॉडल क्लब्स, इट मे बी थ्रू गिविंग द मेलविन जोन्स फेलो, इट मे बी थ्रू लायंस शेयर प्रोग्राम. यू लर्न अबाउट ऑल दीज प्रोग्राम्स कि कैसे हम $50, $100, $200 देके भी हम एलसीआई को सब कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं. यू कैन बिकम 100 by 100 क्लब, जहां हर मेंबर $100 दे रहा है. देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड मेनी वेज ऑफ सपोर्टिंग कैंपेन 100. And we have a great expectation. You are doing wonderful work, Rajkumar ji. Great work you are doing. So as we expect a great work from you in campaign 100 too. इसमें भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट से बहुत उम्मीदें हैं. So I will not take now much of time this stage. I'll talk further whenever required. And I am there till end. Any question, any doubt, all the team is here. The area leader, multiple coordinator, district coordinator, everyone is here. Whatever questions you have, whatever doubts you have, we are here to clarify. Thank you. I hand over back to the area leader to proceed further. Thank you. Thank you, sir. Rajkumar, please continue. Thank you, sir. Thank you. It's always pleasure to listen you, sir. It's pleasure to listen you. हमेशा आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, and always your blessing is with us. So now, with proud and privilege that today we have with us the LCIF, today we have with LCIF Deputy Head Resource Mobilization, Miss Rashmi Wills, ma'am. So it's our pleasure, ma'am. I welcome you in District 322G, and definitely, madam, definitely our district leaders wants to listen to you, and my request to present role of club LCIF coordinator presents before house. Madam, over to you. Thank you so much. सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग. शायद कुछ इस मीटिंग में हैं लोग जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सुन चुका है, तो रिपीटेशन होगा, बट मेरे ख्याल से कोई चीज जब बार बार सुनते हैं आप, तो वो ज्यादा अच्छे से रजिस्टर होती है. फिर कभी भूल नहीं सकते आप कि वो काम मुझे नहीं करना है. तो मैं तो समझूंगी ये अच्छी बात है कि जितनी बार मैं एक ही चीज को बार बार बोलूं, आप लोगों के दिमाग में वो रजिस्टर हो, और हम बिल्कुल सोते जागते खाते पीते, हमें पता है हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है. आप मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है. थैंक यू. Rajkumar ji, very good. Your target of attendance is completed. That is. Thank you, sir. Thank you very much. 101 है. अभी सर दिल मांगे मोर, अभी 125 तक जाने का मन हो रहा है. आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? Rashmi is okay. Yes, ma'am. Okay. Yes. Thank you. तो मैं फिर से गुड इवनिंग बोलूंगी सबको. ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आप सब लोगों से मैं मिल रही हूँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू. शायद मैं फिजिकली इतने लोगों से नहीं मिल पाती, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म को थैंक यू कि एक अपॉर्चुनिटी दी मिलने के लिए, एंड थैंक यू इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए. आज का जो मेरा मकसद है, जो एम है इस मीटिंग का, वो मेनली ये होगा कि हम 2 और 3 जो मेन इंफॉर्मेशन है या जो हमारा रोल है, LCIF है, कैंपेन 100 है, उसके बारे में मैं बात करूं. अगर आपको लगता है कि ये पहले से आपको पता है, तो फिर भी आई थिंक सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमेशा अपडेट होती रहती है और चेंज होती रहती है, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप उस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर लें. और जो नए हैं अभी, उनके लिए तो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी. तो वेलकम ऑल ऑफ यू. एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि
आप सब लोग एक ग्लोबल टीम का हिस्सा हैं और LCIF जो है वो बहुत थ्रिल्ड है कि आप सब लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा हैं। तो वी आर ऑनर्ड कि आप लोग इस फाउंडेशन से कैंपेन 100 से जुड़े हैं और इसके लिए आप अभी तक जितना आपने काम किया है प्लस आगे भी 2 साल जो कैंपेन है हमारा चलेगा उसमें भी आप काम करेंगे। आज हम, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रेजेंटेशन में हम 3 टॉपिक्स जो है कवर कर रहे हैं। LCIF का इंट्रोडक्शन, कैंपेन 100 और क्या रोल है हमारा, किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं फाउंडेशन को और कैंपेन 100 को। जैसे कि लायन होरा ने ऑलरेडी पहले बता दिया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजकुमार जी ने भी पहले बता दिया है, ये हमारा फाउंडेशन है। तो LCIF है क्या? ये हमारा फाउंडेशन है और किसी का नहीं है, हमारा खुद का फाउंडेशन है। ये एक चैरिटेबल आर्म है LCI का। तो लायंस ने ही एक्चुअली देखा जाए तो इस फाउंडेशन को बनाया है। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये फाउंडेशन भी एग्जिस्टेंस में नहीं होता। तो ये चैरिटेबल आर्म है LCI का, हमारा फाउंडेशन है और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है जो कि ग्रांट मेकिंग है। नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं ना, जिसका नो प्रॉफिट नो लॉस, हर पैसा जो कमाया है आपको वो हर पैसा आपको खर्च करना होता है और आपको बताना होता है कि आपने इस पैसे से कोई प्रॉफिट गेन नहीं किया है। तो हम वो कॉर्पोरेट वाले कल्चर में तो आते ही नहीं है, हम जो कमाते हैं हम उसको कम्युनिटी में लगा देते हैं। तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रांट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे फाउंडेशन का जो मिशन है, जैसे आप देख रहे हैं, LC लायंस के जो क्लब्स हैं या जो पार्टनर्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना है, ये है फाउंडेशन का मकसद। क्योंकि आप लोग जो हैं वो कम्युनिटी में जो है सर्विसेज देते हैं लोकली ग्लोबली, और इसी के थ्रू कितनी सारी लाइव्स जो हैं आप इम्पैक्ट करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो ये जो आपके एफर्ट्स हैं जो आप ग्राउंड में डालते हैं, उन्हीं एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए LCIF जो है वो काम कर रहा है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो मेजर हमारे 4 ग्लोबल कॉजेज हैं, एक है साइट, यूथ, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। ये मेन 4 हमारे ग्लोबल जो कॉजेज हैं जिस पे LCIF इतने सालों से फोकस करती आई है और आप लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं ग्राउंड में। हमारा फाउंडेशन, मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो पैसा दे रहे हैं या वो मतलब जा रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट्स में जा रहा है, कैसे ट्रस्ट करें हम। तो इसलिए ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि हर एक पैसा, हर एक रुपी जो आप डोनेट करते हैं, वो पूरा 1 रुपया अगर आपने डोनेट किया है वो एज इट इज आपके प्रोजेक्ट्स में जाता है। LCIF उसमें से 1 पैसा भी अपने पास नहीं रखता है। एवरीथिंग जो अर्न या जो फाउंडेशन जो फंडरेज होती है या जो इनकम आप या सपोर्ट जो आप देते हैं फाउंडेशन को, हर एक पैसा जो है वो प्रोजेक्ट्स में जाता है। और ये कहाँ जाता है? ये इन्वेस्ट होता है लोकल ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में और कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हम बहुत सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं। फाउंडेशन में बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं। हर पैसे का आने का एक सिस्टम है, उस पैसे को खर्च कैसे करना है उसकी पॉलिसीज एंड सिस्टम्स हैं। तो हर एक रिकॉर्ड बहुत अकाउंटेबली जो है वो मेंटेन किया जाता है। और इसी का शायद कारण है कि इंटरनेशनली आप देखें तो हमारे फाउंडेशन को जो है 4 स्टार कैटेगरी में जो है काउंट किया गया है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा क्रेडिबल, अकाउंटेबल और ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी सिस्टम्स, हमारी पॉलिसीज, हमारे लीगल प्रोसीजर्स बहुत क्लियर हैं और हम बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, हर पैसा जो आप देते हैं वो एज इट इज प्रोजेक्ट्स में लगता है। ये है हमारे LCIF के अचीवमेंट्स अभी तक के, और ये शायद पॉसिबल नहीं होता अगर आप सब लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता। तो मैं शुरुआत करूंगी कि थैंक यू सो मच जो आप इतने सालों से इस फाउंडेशन को सपोर्ट करते आए हैं, जिसकी वजह से ये जो आप अकम्पलिशमेंट स्क्रीन पे देख रहे हैं वो पॉसिबल हो पाए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक 1.1 बिलियन ग्रांट्स जो हैं वो ग्लोबली जो हैं वो इन्वेस्ट की हैं कम्युनिटी में LCIF ने,
जिसमें से $118 मिलियन जो हैं वो डिजास्टर रिलीफ के लिए गया है। 18 मिलियन चिल्ड्रन एंड यूथ जो हैं वो लायंस क्वेस्ट के थ्रू सर्व किए गए हैं। 2 सक्सेसफुल कैंपेन्स जो रहे हैं जिसमें हमने इन्वेस्ट भी किया है और काफ़ी अच्छी फंड रेजिंग की है। बट कैंपेन 100 अभी तक का सबसे ज़्यादा एम्बिशियस कैंपेन रहा है और हमें बहुत उम्मीद है इस कैंपेन से। मीजल वैक्सीनेशन जैसे आप देख रहे हैं कि 87 मिलियन चिल्ड्रन को हम प्रोवाइड कर चुके हैं और 30 मिलियन पीपल की जो साइट है वो हमने इम्प्रूव की है या रिस्टोर की है। तो ये सारे अचीव दीज आर बिग नंबर्स और ये पॉसिबल नहीं होते अगर हर एक लायन का सपोर्ट आज LCIF को नहीं। अब मैं आपको ब्रीफली इम्पैक्ट इंडिया में क्या हुआ है इसका उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया में 1968 से लेकर अभी तक, जब से ये फाउंडेशन हिस्टोरिकली मतलब जब बना है और तब से लेकर आज तक में इंडिया में 2027 ग्रांट्स अवार्ड की गई हैं एंड इट्स टोटल टू $106 मिलियन व्हिच इज अ वेरी बिग अमाउंट। सो दैट मीन्स आप लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए LCIF was able to fund and invest back in the community. हमारा जो इम्पैक्ट है इंडिया में वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और हमने जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया था अभी हमने इंडिया में जो है इन्वेस्ट किया है या कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स किए हैं। LCIF कुछ सालों पहले इंडिया में एज एन इंडियन एंटिटी भी रजिस्टर हुआ है और उसका मेन पर्पस ये था कि जो इंडियन लायंस हैं जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो टैक्स बेनिफिट भी अवेल कर पाए। दैट वाज द मेन दिस थिंग। और लोकली वो पैसा हम रेज करके हमारे लोकली जो फाउंडेशन की एंटिटी है हम उसमें दे पाए। तो ATG सर्टिफाइड फाउंडेशन है हमारा क्योंकि इंडिया में इसकी एंटिटी रजिस्टर्ड है। 2000 प्लस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 1968 से LCIF जो है प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। LCIF इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो डेडिकेटेड स्टाफ है, तो आपका इसामे ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग रोल्स को लेके स्टाफ हैं जो डेडिकेटेडली आपको हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। मुझे 1 ही साल हुआ है लेकिन मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। मेरा टाइम जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी आपको मेरे से सपोर्ट चाहिए मैं आपको सपोर्ट करूं ताकि हम कैंपेन 100 को सक्सेसफुल बना पाए। और यही इंडिया में नहीं, इवन हेडक्वार्टर में भी जो है एक डेडिकेटेड टीम है जो असाइन की है इंडिया के सारे अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 700 प्लस करोड़ जो है वो इन्वेस्ट हुआ है इंडिया में। किस तरह का वर्क अभी तक जो इंडिया में हुआ है बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, ये एक छोटा सा स्नैपशॉट है उसका। 250 प्लस आई हॉस्पिटल्स हैं, 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स एंगेज हैं लायन क्वेस्ट के थ्रू, 51 डायलिसिस सेंटर्स हैं, 220 साइट फर्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे इंडिया में हैं। दीज आर बिग नंबर्स। इंडिया में इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। ये आप लोगों की एफर्ट्स है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। So thank you so much for investing back in the community and serving the community. I think so Lions जाने ही जाते हैं कम्युनिटी में सर्व करने के लिए। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तभी भी जब लायंस के बारे में मुझे जो एक इमेज थी वो ये थी कि लायंस जो हैं ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं कम्युनिटीज के लिए, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैं चाहती थी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ूं क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आप लोग काम करते हैं। कोविड-19 हम सबको पता है इसने बहुत बुरी तरह से हम सबको इम्पैक्ट किया है। कुछ महीनों से आप सब देख रहे हैं कि ग्लोबली लोकली मतलब हमारे इंडिया में भी जो हालात हुए हैं, इम्पैक्ट हुआ है, फाइनेंशियली हुआ है, किसी को इमोशनली हुआ है, हम सब इस दौर से गुजर चुके हैं। इसने हेल्थ भी जो है काफी इश्यूज हुए हैं, हेल्थ के फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए LCIF क्विकली एंड प्रॉम्प्टली एक्टेड। उन्होंने एक्शन लिया कि ये एक इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी में फाउंडेशन को तुरंत
काम करना चाहिए। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 333 LCIF ग्रांट्स ग्लोबली जो है अवार्ड हुई हैं, 5.1 मिलियन के आसपास उसका टोटल जो है बजट है। और इंडिया में आप जैसे देख रहे हैं 66 ग्रांट्स टोटलिंग टू 660,000, which means 66 grants ये 66 district में दी हैं। I think so it's close to 90% of the districts in India that जिनको ये COVID-19 की ग्रांट मिली है। और ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि इमरजेंसी जब होती है तो फाउंडेशन कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है और आप लोग कितना क्विकली ऑन ग्राउंड इमीडिएटली एक्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं। अब मैं बात करूंगी कैंपेन 100 की। हमने अभी अपने अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बात किया कि हमने क्या अचीव किया है। 1.1 बिलियन जो है ग्रांट्स हमने अवार्ड किए हैं, वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आपको क्या पता है कि आज भी ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, आज भी 2.2 बिलियन पीपल हैव विजन इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस। आज भी जो है 300,000 चिल्ड्रन जो हैं वो हर साल चाइल्ड जो कैंसर है उससे डायग्नोस होते हैं। आज भी 300 लोग हैं जो हर दिन मीजल्स की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है। हर 11 लोगों में एक बंदे को जो है डायबिटीज का इशू होता है। डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है और ये फिगर ऐसा है कि अभी 11 में एक है, अगले कुछ महीनों में या सालों में ये फिगर ऐसा हो जाएगा हर 5 में एक है। यू नेवर नो जिस हिसाब से डायबिटीज हो रहा है। और ये एक अर्बन डिजीज होके रह गई आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल हम सबका ऐसा हो गया है। तो ये जो सारे फिगर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमको सोचने पे शायद मजबूर भी करते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ बाकी है करना। और शायद इसीलिए कैंपेन 100 जो है वो LCIF ने लॉन्च किया। और इस कैंपेन से आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जुड़ें। तो हम कैसे कैंपेन 100 के थ्रू, मतलब हम क्या चाहते हैं। तो एक तो हमारे जो सर्विस इम्पैक्ट है, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में जब बताया था कि जो हमारे 4 मेन ग्लोबल कॉजेस थे, साइट, यूथ, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, हम चाहते हैं कि उसमें हमारा इम्पैक्ट हम और इंक्रीज करें। तो जो हमने पहले किया है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन क्या हम और ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि इश्यूज अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। दूसरा जो है हमारा एम जो है कैंपेन 100 के थ्रू, वो है हमारा जो ग्लोबल एपिडेमिक है ऑफ डायबिटीज। हम चाहते हैं कि इसमें हम काम करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव करें। एंड थर्ड जो है हम चाहते हैं कि और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें इंटरवेंशन करना चाहिए, लाइंस को मिलके काम करना चाहिए। और वो है कि हम अपना फोकस अब थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो वो 4 कॉजेस के अलावा एक तो हमने डायबिटीज जैसे बताया कि हम फाइट करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं उस एरिया में। दूसरा चाइल्डहुड कैंसर, हंगर और एनवायरमेंट, ये 3 ऐसे एरिया हैं कि जो कैंपेन 100 के थ्रू हम एड्रेस करना चाहते हैं और उस पर काम करना चाहते हैं। कैंपेन 100 शायद आपको पता होगा कि इसका जो पहले का जो डेडलाइन था वो जून 30, 2021 में एंड होने वाला था। एंड बेसिकली मॉन्ट्रियल में जो कन्वेंशन था वहाँ पे इसका क्लोजर होना था। बट पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो हमारे ये पिछले 6 से 8 महीने जो गए हैं, जिस तरह से हम लोग अपनी ही इतनी मुश्किलों में फंसे हुए थे कि शायद थोड़ा टाइम लगा सबको संभलने में और समझने में कि आखिर चल क्या रहा है, हेल्थ से रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज, इस सबको ध्यान में रखते हुए जब इंटरनेशनल कमेटी मीटिंग हुई थी इन द मंथ ऑफ जुलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब ये डिसीजन लिया गया कि आई थिंक सो इट इज एडवाइजेबल, ये बेहतर होगा कि हम कैंपेन को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दें। क्योंकि सब जानते थे कि लायंस बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये समय अभी थोड़ा सा जो है वो फेवर में नहीं है। तो इस कैंपेन को हमें एक्सटेंड करना चाहिए क्योंकि ये कैंपेन से सबको बहुत उम्मीदें हैं। और ये कैंपेन, जैसे हमने पहले बताया कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं इस कैंपेन के थ्रू हमारी कम्युनिटी में। ये है हमारे 3 मेजर गोल्स कैंपेन 100 के।
हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लाइव्स चेंज करना चाहते हैं। जब फंड रेज करेंगे तो वो पैसा कम्युनिटी में लगाना है, और लगाएंगे तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ चेंज करेंगे। 100% पार्टिसिपेशन फ्रॉम लायंस एंड क्लब्स। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो बीच में एक फिगर है ना 100%, बस इस 100% पार्टिसिपेशन फ्रॉम लायंस एंड क्लब्स, इसको आप बिल्कुल रजिस्टर कर लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि मैं आपको, यही एक सक्सेसफुल मंत्रा है इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आपने इस पे फोकस कर लिया, बिलीव मी, आप लोगों को और कहीं पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप इसके थ्रू कैंपेन का जो टारगेट है वो बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एंड देन $3 million रेस थ्रू कैंपेन 100। जो कैंपेन पीरियड का जो ओवरऑल गोल है वो 300 मिलियन हमको रेस करना है ओवरऑल। अब शुरुआत में जब हमारी बात हो रही थी, जब हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजकुमार जी ने जब शुरुआत की थी, एड्रेस किया था, वेलकम दिया था, मुझे एक थॉट आया था कि बहुत सिंपल सी चीज है कि मुझे भी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आज हमारी खुद की अपनी पर्सनल फैमिली है, जो रेगुलर हमारे फिनेंशियल्स जो हैं वो चलते हैं, हम पूरा उसका हिसाब रखते हैं, हमें ध्यान रहता है, हमें पता होता है कि हमारा महीने का कितना खर्चा है। लेकिन कुछ इमरजेंसीज हैं या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कभी भी आ सकती हैं, जिसको ना आप टाल सकते हैं ना कुछ, ये कल क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करते हैं? हम इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम बैंक में कुछ पैसा अपना जो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए एटलीस्ट सेविंग्स करते हैं, और ये जो सब सेविंग्स होती हैं ये होता है कि हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं या हमारे जो आगे फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आती है उस सब से लड़ने के लिए हमारे पास फिनेंशियली हमको इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। मैं सिर्फ इस छोटे से एग्जाम्पल को इसलिए दे रही हूँ कि जो कैंपेन 100 है ये एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट है, जो आज आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अगले 50 साल तक इस फाउंडेशन को इतना मजबूत बना रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी में कोई भी अगर इशू होगा तो फाउंडेशन हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा कि यस लेट्स इन्वेस्ट, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है और यही इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर आप सर्विस एक्टिविटीज में लगाएंगे। तो आई थिंक सो ये कैंपेन बहुत एम्बिशियस जैसे मैंने बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फाउंडेशन का जो कैंपेन है ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो आज नहीं कल के लिए भी थोड़ा सा सोच के चलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये ओवरऑल फंड रेजिंग सितंबर 18 तक के फिगर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसामी रीजन कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया 6 17 मिलियन ओवरऑल यूज अभी तक हमने रेज किया है, और ये क्यूमुलेटिव गोल जो है हमारा जो जून 30 2021 तक है उसका अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 75% हमने रेज किया है। तो हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आई थिंक सो हमें और अभी और एफर्ट्स डालने हैं और इंश्योर करना है कि हम हमारा कैंपेन 100 का गोल जो है वो 100% रेस करें। ये एक स्लाइड इसके पहले मैंने कोऑर्डिनेटर मीटिंग में नहीं ऐड की थी, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि क्लब कोऑर्डिनेटर्स हैं शायद उनको भी जानना जरूरी है कि कैसे हमने अभी तक क्या किया है और आगे हमें क्या करना है, क्योंकि मैं पहले भी एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, और वो एग्जाम्पल ये है कि जब जन्माष्टमी का एक फेस्टिवल होता है तो हांडी को फोड़ना होता है, वो लक्ष्य होता है, सब तारीफ करते हैं उस बंदे की जो ऊपर चढ़ के हांडी को फोड़ देता है, बट बिलीव मी जो सबसे नीचे का जो सर्कल होता है ना, जो लोग अपने मजबूत कंधों पे उस पूरे पिरामिड को खड़ा होने देते हैं, अगर वो मजबूत कंधे थोड़े से भी लड़खड़ा जाए तो आप उस हांडी को नहीं फोड़ सकते। और ये मजबूत कंधे हैं आज के आप सारे लोग जो क्लब कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो क्लब से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे, आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो मैं शायद ऐसे ही बोलती रहूंगी, टॉप लीडरशिप भी शायद सपने देखती रहेगी, बट आप लोगों के एफर्ट्स के साथ जुड़ के हम इस कैंपेन 100 को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी 322G में अभी तक का जो सितंबर 14 तक का जो फंड रेजिंग है
वो क्यूमुलेटिव गोल तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम में 72% के आसपास जो है हमने रेस किया है। बट ओवरऑल अगर आप देखें जो टोटल कैंपेन 100 का गोल है वो हमने अभी 44% अचीव किया है, विच मीन्स हमें अगले 2 साल में कोशिश करनी है कि हम रिमेनिंग 54% रेस करें, और ये बिना आपके पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों का सपोर्ट मैं बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इस कैंपेन को हमें सक्सेसफुल बनाना है। और नीचे आप देख रहे हैं ये हमारा 2 साल का गोल है 2021 और 21-22 का, क्योंकि अब 2 साल कैंपेन हमारा जो है एक्सटेंड हो गया है, मतलब 1 साल एक्सटेंड हो गया है। फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखेंगे कि एनुअल गोल लिखा हुआ है, आप सबको मैं बता दूं ये एनुअल गोल जो है ये न्यू मनी है। जो पुराने प्लेजेस है वो ऑलरेडी काउंट हो गए हैं हमारे फंड रेजिंग में। आप ऊपर जब देखेंगे प्लेज बैलेंसेस, मॉडल क्लब बैलेंसेस सब आपको ऊपर दिख रहा है, वो पैसा ऑलरेडी काउंट हो गया है। तो अगर किसी का प्लेज है जिसने $1,000 प्लेज किया है और अगर उसमें से वो $500 देता है, वो ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है, वो इस नए गोल में एनुअल गोल में शामिल नहीं होगा। ये एनुअल गोल 58,000 का जो 322G का है, ये है न्यू मनी। मतलब आप नए लायंस को इस कैंपेन 100 में अपने साथ जोड़ें और उनको रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज डोनेट करें। और ऐसे ही आपका 21-22 का जो गोल है वो भी न्यू मनी है। और ये दोनों गोल अगर इनकेस हमने 2021 का जो 58,000 का गोल है इनकेस हम नहीं अचीव करेंगे तो हमारा जो आगे का गोल है वो चेंज हो जाएगा। ये अभी इस अजम्पशन में है कि हाँ हम 58,000 अचीव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ईयर का गोल ये है, लेकिन अगर हमने अचीव नहीं किया तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे, ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगी आपके रोल के बारे में। इसके पहले कि मैं रोल के बारे में बात करूं, मैं एक छोटा सा आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ। ये है फंड रेजिंग ग्रांट कंपैरिजन इन इंडिया। अब इसमें आप जो है आपका कॉलम में आप देखेंगे कि मेंबरशिप मई 2020 में क्या थी, क्या कैश डोनेशन जो है सितंबर तक आया है हर मल्टीपल से, कितनी ग्रांट हमने अवार्ड की है और क्या डिफरेंस है। अब एक्चुअली आप अगर ये देखेंगे फिगर, आप देखिए ऑलमोस्ट फाउंडेशन ने जो आपने रेस किया है उससे डबल ग्रांट उन्होंने अवार्ड की है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये कब तक हो सकता है आगे, इसके लिए हमें, आपने डोनेट किया, फाउंडेशन ने वापस आपको दिया, आपने ₹1 दिया, फाउंडेशन ने आपको ₹2 दिया कि आप कम्युनिटी में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये कंटिन्यू करना है हमको कि हम कंटिन्यू करते रहें, डोनेट करते रहें फाउंडेशन को कैंपेन 100 में, ताकि जब भी हमको जरूरत है कम्युनिटी को सर्व करने की, फाउंडेशन हमें इसी तरह आगे भी सपोर्ट करे। अब हम बात करेंगे रोल की। तो आपको जैसे मैंने बताया कि क्लब LCIF कोऑर्डिनेटर होने के नाते आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ग्लोबल टीम का हिस्सा हैं, और आपका जो मेन गोल या एम होना चाहिए वो ये करना चाहिए कि मेरा क्लब का हर लायन, हर फेलो लायन जो है वो कैंपेन 100 में कंट्रीब्यूट करे। इसके लिए लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो ये जो 3 आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये मैंने एक सजेस्ट किया है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप इससे अच्छा भी कर सकते हो, या हो सकता है आपके लिए आपके क्लब में कोई दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो एप्लीकेबल होगी। टेल योर स्टोरी, मेक अ प्लान एंड देन रेज फंड्स। अगर ये 3 स्टेप्स आप करेंगे, 3 एक्टिविटीज आप करेंगे, तो आप पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब मैं आपको बोल रही हूँ टेल योर स्टोरी, मतलब आप अपने बारे में, इम्पैक्ट के बारे में, LCIF के इम्पैक्ट के बारे में मेंबर्स को बताइए। प्लान बनाइए कि किस तरह से आपको फंड रेजिंग करनी है, और उस प्लान के बाद फिर आप जो है फंड रेज कीजिए। स्टोरी जब आपको मैं बताने की बात कर रही हूँ तो मैं ये सब सजेस्टिव वो है, आप इसको प्लीज अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं। आपको बताना होगा, जब आप किसी से भी, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि आज अगर मुझे अपने फ्रेंड को ये बोलना है कि यार इस ब्रांड का वॉशिंग मशीन ले लो, ये बहुत अच्छा है, मैं तभी बता पाऊंगी जब मैंने उस ब्रांड का वॉशिंग मशीन यूज किया होगा।
अगर मैंने यूज नहीं किया है तो शायद मैं उसको इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकती हूँ। तो मैं पहले अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैं यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, वो पानी ज्यादा यूज नहीं करता है, एग्जाम्पल। ये मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से जब आप फंड रेजिंग करते हैं, फंड रेजिंग में भी जिसको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए कैंपेन में, आपको पहले उसको एक स्टोरी बतानी है, आपकी खुद की स्टोरी, जो कि एक सक्सेस स्टोरी है, कि भाई आपके क्या रीजंस हैं जो आप एज अ लायन सर्व कर रहे हो, आपने कंट्रीब्यूट किया है, क्या रीजन से कंट्रीब्यूट किया है, किस तरह का इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन से हुआ है, कौन से ग्लोबल कॉजेज हैं जो आपको बहुत दिल के करीब थे, जिसकी वजह से आपने उस पर्टिकुलर कॉज के लिए सपोर्ट किया है। और ये सब स्टोरी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, कुछ हैं, आप उसको स्टोरी बताइए कि क्या लग रहा है तुमको, ये मैं स्टोरी जब अपने फेलो लायंस को सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, क्या उनको इम्पैक्ट करेगा, क्या वो मोटिवेट होंगे देने के लिए? तो प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर, एक ये एक मेथड है कि अपनी स्टोरी बताना बहुत जरूरी है बिफोर यू आर मोटिवेटिंग एनीबॉडी एल्स, कि आप आए और कंट्रीब्यूट करें। और ये कॉन्फिडेंस और एक कन्विक्शन लाता है जब आप अपनी स्टोरी बताते हैं। और बहुत फर्क पड़ता है, आप 10 लोगों को बताएंगे तो शायद काफी सारे लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे, और स्टोरी नहीं बताएंगे तो शायद 10 के 10 मना कर देंगे कि मजा नहीं आया, मतलब मैं क्यों दूं, राइट? प्लान बनाइए। अब जब मैं बोल रही हूँ प्लान बनाइए, तो प्लान तो जरूरी है कोई भी सक्सेस के लिए। तो आपके क्लब के लिए कौन सी फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी, आपको वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हम आगे थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। और वो फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी जब आपने एक बार डिसाइड कर ली है, तो फिर आप अपना गोल बनाइए पूरे साल का, कि ये फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी मेरे क्लब में काम करेगी और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं इतना एक साल में रेस करूंगा। गोल कैसे सेट कर सकते हैं आप? तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि गोल आपको सेट करना है, क्योंकि आप क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं आपके क्लब के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपका क्लब जो है 100% मेंबर पार्टिसिपेशन के लिए जाना जाए, या आप चाहते हैं कि हर मेंबर आपके क्लब का $100 दे, या आप गोल एक सेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये गोल को मैं फंड रेजिंग इवेंट्स के थ्रू, या मेरा जो क्लब ट्रेजरी गिफ्ट है उसके थ्रू उस गोल को मैं अचीव करूं और मेरा क्लब का जो गोल अचीव हो। या आप चाहते हैं कि जो आपका क्लब है वो एक मॉडल क्लब बने। तो ये थोड़ा सा आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि किस किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, और उसी में फिर आप फोकस कीजिए। चूंकि मैंने क्लब्स के बारे में बात की है, मॉडल क्लब के बारे में बात की है, तो मॉडल क्लब के पहले अगर आपको लग रहा है कि नहीं मॉडल क्लब तो बात की बात है, पहले मुझे कुछ और करना है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है 100 क्लब की, कि हर मेंबर जो है वो $100 कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। और अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो आप मॉडल क्लब के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। बट ये एक 100 क्लब एक अपॉर्चुनिटी है जो आप एनकैश कर सकते हैं, और इसलिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको। रिकॉग्निशंस भी हैं अवेलेबल इसके लिए, और हम आगे और भी रिकॉग्निशंस के बारे में बात करेंगे। मॉडल क्लब, मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा पोटेंशियल एरिया है जो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज की मीटिंग के बाद जब वापस जाएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि क्या मेरा क्लब मॉडल क्लब बन सकता है। और बहुत मुश्किल नहीं है, बिलीव मी, बस इसको समझ लीजिए कि क्या है। एक तो जैसे आप देख रहे हैं कि एवरेज गोल जो है पर मेंबर, एवरेज गोल वो $500 होना है। अब ये गोल कैसे एवरेज होगा? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लब में 15 मेंबर है और वो 15 मेंबर्स में से 5 तो आपके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, जैसे एक फैमिली के 3 लोग हैं तो वो सिर्फ हेड काउंट होगा, बाकी दोनों को काउंट नहीं करना है मेंबरशिप में। तो अगर वो 15 में से 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो वो फैमिली मेंबर्स आप हटा दीजिए, तो आपकी क्लब की मेंबरशिप हो गई 10। अब ये 10 लोगों को जो है 10 into $500 आपका गोल हो गया $5,000, राइट?
5,000 आपको जो है वो $5,000 आपको अचीव करना है, और उसका पीरियड क्या है मालूम है? 2017 से लेकर 2023 तक वो पैसा आपको अचीव करना है। तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में करना है या 1 साल में करना है, नहीं। हो सकता है उस $5,000 में से 2017 से आज तक में आपने $2,000 ऑलरेडी रेज कर लिए हो, तो मतलब आपको आगे के 3 साल के लिए सिर्फ $3,000 पे फोकस करना है। तो आप देख रहे हैं पूरा 6 साल का पीरियड आपको मॉडल क्लब प्रोग्राम में दिया जा रहा है कि आप उस गोल को अचीव करें, और गोल आपका 5,000 है। ऐसा भी नहीं है कि हर मेंबर को $500 देने हैं, और इसको आप कैसे भी अचीव कर सकते हो। या तो मेंबर कंट्रीब्यूट करें, या आप एक फंड रेजिंग इवेंट कर लो, उससे पैसा आ जाए, या आप अपने क्लब ट्रेजरी गिफ्ट से अगर चाहो तो LCIF को डोनेट कर दो, या आप आपकी कम्युनिटी में और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, अगर आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं तो उनको बोलिए कि प्लीज कंट्रीब्यूट करें। इवन उनका कंट्रीब्यूशन जो है आपके मॉडल क्लब के लिए एलिजिबल है। तो ये प्रोग्राम जो है ये बहुत इजी तो नहीं कहूंगी, लेकिन आई थिंक सो इट इज अचीवेबल, और हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम अपने क्लब को एक मॉडल क्लब बना सकते हैं। फंड रेज, जैसे अभी हमने इसके पहले बात की, ये 4 मैंने आपको एक सजेस्टिव सेक्शंस दिए हैं कि आप इस तरह से फंड रेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल मेंबर गिविंग, मतलब आपके क्लब में या तो आप इंडिविजुअल मेंबर गिविंग पे फोकस कर लीजिए, या आप इवेंट्स पे फोकस कर लीजिए, या आप क्लब ट्रेजरी गिफ्ट पे फोकस कर लीजिए, या बिजनेसेस और जो नॉन लायंस हैं आपकी कम्युनिटी में, आप उनसे फोकस करके उनसे भी फंड रेज कर सकते हैं। जब मैंने आपको कैंपेन 100 गोल के बारे में बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो बीच में एक सेक्शन है 100% पार्टिसिपेशन, इस पे प्लीज ध्यान दीजिए। एंड बहुत इजी है, बिलीव मी। आज की डेट में जिस तरह से सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से, आई थिंक सो अब हम लोगों को हमारा फोकस स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस में, रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस में शायद डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम सब मिलके सिर्फ एक छोटा सा एक फोकस ये डालें कि हमें $1,000, $2,000, $5,000, $25,000 जो है दे सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी, डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हर लायन नहीं दे सकता है। और कहीं ना कहीं शायद इसलिए क्योंकि हमारा फोकस होता है कि हमें मेजर गिफ्ट लेना है, हमें MJF रेस करना है, हम शायद इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो भूल जाते हैं। बिलीव मी, $2 अ वीक विच मीन्स ₹150 एक हफ्ते का, ₹600 एक महीने का, और आपका करीब ₹7,500 होता है एक साल का। आप अगर हर मेंबर में सिर्फ ₹7,500 एक $100 पे अगर आप फोकस कर दें, आप अपना टारगेट बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। और जो कैंपेन का गोल है 100% पार्टिसिपेशन, वो ऑटोमेटिकली आप उसको फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक सो इट इज टाइम कि हम हर लायन के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में कैंपेन 100 के लिए। और प्लीज आप कंट्रीब्यूट कीजिए, एंड वी शुड मोटिवेट लायंस कि आप इतना दें। तो अगर हमने $100 अ ईयर फोकस कर लिया, तो हम आगे के 2 साल के लिए जो हमारा कैंपेन पीरियड है, एटलीस्ट हर मेंबर से हम $200 टारगेट कर सकते हैं। अब मैं इसलिए ये स्लाइड बता रही हूँ कि $100 क्यों, क्या होगा $100 में? $100 इज इक्वल टू ₹7,500, हम सबको पता है। और ये 7,500 आप देखिए क्या कर सकता है आपकी स्क्रीन पे। 2 कैटरैक्ट सर्जरीज में हेल्प कर सकता है। एनवायरमेंट में अगर आप सेक्शन में देखेंगे, एक्सेस टू क्लीन वाटर फॉर 14 पीपल, बहुत जादू है इस $100 में। ₹7,500 शायद अगर हम हर महीने का 600 या ₹700 देंगे, उतनी तकलीफ हमें नहीं होगी, लेकिन शायद जिसको बहुत जरूरत है उसके लिए ये एक मिरेकल का तरीके का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ₹7,500 जो कि सिर्फ $100 है, हमको लगता है क्या होगा $100 में, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। और ये 100 अगर बहुत सारे जुड़ जाएं तो फिर इम्पैक्ट ही कुछ अलग है। मैं तो काउंट भी नहीं कर पाऊंगी नंबर्स कि हम किस नंबर्स तक जाके और इम्पैक्ट करेंगे लाइव्स को। ये एक छोटा सा सेक्शन जो है मैं लेना चाहूंगी कि आप इंडिविजुअल मेंबर्स को, क्योंकि हम मेंबर गिविंग की बात कर रहे थे,
कि हम कैसे एंगेज करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बोला था टेल योर स्टोरी, और आप पहले खुद डोनेट कीजिए, कि जब आप डोनेट करते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली मोटिवेट कर पाते हैं। तो मेक योर ओन डोनेशन फर्स्ट। ये सारे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये तरीके हैं जब आप फंडरेज इस तरह से कर सकते हो, बाकी आप इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कीजिए। तो मेक योर ओन डोनेशन फर्स्ट। जब आप डोनेट करेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली किसी और को बोलेंगे कि डोनेट कीजिए। इजी बनाइए उनके लिए। प्लेज है, अगर वो प्लेज करना चाहते हैं तो प्लेज फॉर्म उनको दीजिए, डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेशन फॉर्म उनको दीजिए। थोड़ा सा उनके लिए इजी बनाइए कि वो इधर उधर रिक्वेस्ट ना करे लोगों से कि भाई मुझे देना है, मैं कैसे दूं। मेक इट मैनेजेबल। ऐसा होना चाहिए कि अगर उनको चेक से देना है या उनको ऑनलाइन देना है तो वो इन्फॉर्मेशन आप जो है वो प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो मैनेजेबल हो। और यू नो छोटे गिफ्ट्स, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में बोलना है $1000 देना है, नहीं। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ठीक है, आप अभी 200 या $100 दे दीजिए, या आप $50 दे दीजिए, क्योंकि आपका हर एक कंट्रीब्यूशन जितना भी है एमजेएफ के लिए, ये सारे एमजेएफ क्रेडिट में ये ऐड हो जाता है। तो जिस दिन आप $1000 अचीव करेंगे उस दिन आप क्वालिफाई एमजेएफ के लिए हो जाएंगे, राइट। तो थोड़ा सा उनके लिए इजी बनाइए कंट्रीब्यूट करने के लिए। प्रेशराइज नहीं करना है हमको किसी को, जो उनकी कैपेसिटी है आई थिंक सो उस कैपेसिटी से थोड़ा सा तो हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ज्यादा, लेकिन फिर भी उनको ऐसा करना है कि वो मैनेजेबल हो। मेक इट पर्सनल। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक ईमेल भेज दिया या मैंने किसी और के थ्रू मैसेज भेज दिया तो सामने लायन जो है, जो फेलो लायन है, वो कंट्रीब्यूट करें, नहीं होता है। जो आप खुद पर्सनली उनसे बात करेंगे फोन पे, फिजिकली मिलके, उसका जो इम्पैक्ट होगा ना, एक पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो इमोशंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के सामने बहुत अच्छे से इजीली कम्युनिकेट होते हैं। तो उसको मेक इट पर्सनल, मेक इट ऑफिशियल। अगर किसी ने डोनेट किया है तो प्लीज उसको इमीडिएटली, जो भी कंसर्न पर्सन है, वो डोनेशन फॉर्म और चेक उनको भेजिए, क्योंकि वो अगर टाइम से रिकॉर्ड नहीं होगा तो टाइम से रिकॉग्निशन नहीं होगा, टाइम से एटीजी नहीं मिलेगी। तो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज मेक इट ऑफिशियल। और एक बार जब कोई डोनेट कर देता है, आई थिंक सो इट इज टाइम, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे कोऑर्डिनेटर्स की, कि हम बात करें कि किस तरह से एलसीआईएफ इस कंट्रीब्यूशन के थ्रू इम्पैक्ट करता है। आपके रीजन में लायन हो रहा सा मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन आई थिंक सो 3-2 में बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और यही प्रोजेक्ट्स हैं आपकी सक्सेस स्टोरी, यही हैं आपके वो इम्पैक्ट स्टोरीज, जिसको आप अपने लायंस को बता सकते हैं कि ये आपने ही पॉसिबल किया है, या हम इससे ज्यादा कर सकते हैं अगर आप आगे कंट्रीब्यूट करेंगे तो। फंडरेजिंग इवेंट जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप साल में एक फंडरेजिंग इवेंट क्लब लेवल पे अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, इट्स गोइंग टू बी गुड। उसके लिए थोड़ा सा आपको 3-4 लोगों को मिलके बात करनी है, तो थोड़ा सा क्रिएटिव होना है कि किस तरह का मैं एक आप या मैं अकेले एक इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, एक कोलैबोरेशन और एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो प्लीज टीम बनाइए, टीम के साथ मिलके थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, थोड़ा क्रिएटिव रहिए। जो भी इवेंट प्लान करें इंश्योर कीजिए कि वो किसी ना किसी ग्लोबल क्लॉज के लिए साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप पैसा रेज कर रहे हैं तो किसी पर्पस के लिए रेज कर रहे हैं। हमेशा जो फंड रेजिंग इवेंट कर रहे हैं वहां पे एक मटेरियल होना चाहिए जो वापस फेलो लायन या जो नॉन लायन अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है उसको ले जाने के लिए, क्योंकि जब आप कुछ लेके जाते हो तो थोड़ा सा आपको याद रहता है कि अरे हाँ, मैं ऐसे एक इवेंट में गया था और इस तरह से हम लोगों ने किया था। एंड प्लीज दूसरे मेंबर्स को भी इनवाइट कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो इनवाइट नॉन लायंस, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लायन मेंबर्स ही होने चाहिए। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमें सबको पता है कि बहुत सारे क्लब्स हैं जो ट्रेजरी गिफ्ट है उसको एलसीआईएफ को डोनेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो उस गिफ्ट को इम्पैक्ट को डबल करने के लिए, कोई अगर लायन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके साथ मैच कर देते हैं फंड, ताकि उसको रिकॉग्निशन भी मिल जाए, वो मोटिवेट भी हो आगे और देने के लिए। तो ये सारे आइडियाज हैं जो काफी क्लब्स यूज कर रहे हैं, इवन आप लोग भी यूज कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि प्लीज अपनी कम्युनिटी को
मैं आपको एक चीज बता दूं, एक पर्टिकुलर जो गैप है जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं वो है LCIF और कैंपेन 100 का अवेयरनेस। आज भी बहुत सारे लायंस ऐसे हैं जिनको फाउंडेशन और कैंपेन 100 के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं है। तो ये हर क्लब LCIF कोऑर्डिनेटर का दायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हम्बल कि अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। जितने ज्यादा लोगों से आप बात कर सकते हैं, बात कीजिए LCIF की और कैंपेन 100 की, और सिर्फ लायन मेंबर्स से नहीं, आपकी कम्युनिटी में आप लोगों से बात कीजिए। जब उनको पता चलेगा कि आप लोग इतना बढ़िया काम कम्युनिटी में कर रहे हैं तो लोग, बिजनेसेस और जो इंडिविजुअल्स हैं वो उससे जुड़ेंगे आपसे। तो तब आपका ये जो है लोकल बिजनेस एंड नॉन लायंस का सपोर्ट आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। अगर आपको पहले किसी ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है, वो सबसे पहले आपको उसको दोबारा जाना चाहिए उसके पास कि सर आपने पहले दिया था, अब हम ये कर रहे हैं, अब मैं आपके पास दोबारा आया हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मतलब लायंस को सपोर्ट कीजिए। तो वो आपके लिए एक शायद इजी वे होगा स्टार्ट करने के लिए। बट अवेयरनेस नॉन लायंस के साथ साथ लायंस में बहुत जरूरी है। तो हमारा एक ये होना चाहिए एम, हर मीटिंग में, हर इवेंट में, हर कन्वेंशन में, हर ट्रेनिंग में हमें जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, रिक्वेस्ट करूंगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, आप लोग यू रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और की इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं आप आपके डिस्ट्रिक्ट के। तो आप लोग प्लीज एनकरेज कीजिए कि हर इवेंट और कन्वेंशन और इसमें LCIF और कैंपेन 100 के में 100 के बारे में बात करें। जब लोगों को पता होगा तभी शायद लोग जो हैं वो मोटिवेट होंगे डोनेट करने के लिए। ये है एक LCIF जो हेडक्वार्टर है, उन्होंने एक मार्केटिंग हब क्रिएट किया है और इसका लिंक काफी सब कोऑर्डिनेटर्स को भेजा है। ये एक ऐसा मार्केटिंग हब है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपको सारे रीसेंट अनाउंसमेंट्स एक क्लिक पे मिल जाएंगे, सारे LCIF के अपडेट्स आपको एक क्लिक पे मिल जाएंगे, ग्रांट एप्लीकेशंस रिपोर्ट आपको मिलेंगी, मटेरियल कोई अगर आपको ऑर्डर करना है तो वो वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, और मार्केटिंग पोर्टफोलियो मिलेगा। तो ये बहुत कॉमन एक साइट बनाई है जिसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया का, कोई भी रीजन का जो कोऑर्डिनेटर है, अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या मटेरियल चाहिए, उनको सिर्फ इस पोर्टल को एक्सेस करना है और इस हब में आपको सब कुछ मिलेगा LCIF और कैंपेन 100 से रिलेटेड। ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है जो अभी आया है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आप सबको बताऊं। इन केस किसी के पास अगर लिंक नहीं आई है या आप चाहते हैं कि आपको एक्सेस मिले, आप प्लीज एक ईमेल मुझे लिखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हेडक्वार्टर से कि वो आपको एक्सेस दे। मार्केटिंग पोर्टफोलियो में जैसे मैंने आपको बताया कि CA वाइज इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। मार्केटिंग मटेरियल आपको दोनों मिल जाएगा, वेब वर्जन अगर आप किसी को ईमेल से भेजना चाहते हैं तो वेब वर्जन मिलेगा, आप चाहते हैं कि वो प्रिंट हो तो आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट के लिए दे सकते हैं। इम्पैक्ट स्टोरीज इंडिया की, अभी मैं बोल रही हूँ टेल योर स्टोरी, आपको बहुत सारी स्टोरीज चाहिए होंगी, तो आप अपने पर्टिकुलर रीजन की स्टोरी यहाँ से लीजिए और उसको लेके आप लोगों से बात कीजिए। इमेजेस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे, और ये आपको शायद फंड रेजिंग में पार्टिसिपेशन अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो बहुत काम आएगा। और ये है कैंपेन 100 मटेरियल, केस फॉर सपोर्ट, एम्पावरिंग क्लब सर्विस, मॉडल क्लब ब्रोशर, प्लेज फॉर्म, ये सारे जो हैं ये स्पेसिफिक इंडिया के लिए जो है क्रिएट किए हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आप लोग मीटिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है या कुछ करना है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अब मैं क्विकली रिकॉग्निशंस पे जाऊंगी। वैसे तो सबको पता है कि रिकॉग्निशंस कौन कौन से हैं। तो जैसे आपने देखा कि LCIF को डोनेट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे वेज हैं, लेकिन MGF इज समथिंग शायद जो बहुत ज्यादा एक ऐसा प्रोग्राम है जो पॉपुलर है इन द कैंपेन। MGF जो है वो उन डोनर्स को रिकॉग्नाइज करती है जिनका कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट $1000 एंड मोर होता है। और ये $1000 जरूरी नहीं है कि किसी को एक ही बार में देना है, जो नहीं दे सकते हैं वो इसको ब्रेक करके भी दे सकते हैं, और जब 1000 हो जाएगा तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव मेल्विन जोन्स आप देख रहे हैं $2000 एंड अप, $100,000 के बीच में हर लेवल पे, जैसे जैसे हर हर $1000 पे एक आपको PMJF लेवल का पिन मिलेगा। और फिर $100,000 एंड अबव है आपका ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर रिकॉग्निशन। लायंस शेयर, क्योंकि हम इसमें फोकस करेंगे तो लायंस शेयर रिकॉग्निशन है उन डोनर्स के लिए
जो एक बार में हैवी डोनेशन नहीं दे सकते हैं. $50 gives 1-star pin, $100 2-star pin and $200 3-star pin. ये कैंपेन 100 के लिए स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम रिकॉग्निशंस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. तो कोई भी लायन जो $100 देता है उसको ये जो बीच में आपको एक पिन दिख रहा है सिल्वर पिन, ये कैंपेन 100 पिन रिकॉग्निशन उनको मिलेगा. और उसके अलावा एक हर लेवल पे आप देख रहे हैं $300 एंड अबव जितने भी लेवल्स हैं उस हर लेवल पे एक रिकॉग्निशन है, पिन है. और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 2 प्लाक्स है. तो वो जो 2 लेवल हैं, लाइन ऑफ एम्पावरमेंट एंड लाइन ऑफ कमिटमेंट वाले जो 2 लेवल हैं, उसमें पिन के साथ में अभी ये नया इंट्रोड्यूस किया है रिकॉग्निशन प्लाक का. वो प्लाक भी जो डोनर है जिन्होंने ये लेवल अचीव किया है उनको दिया जाएगा. Major donor and lead donor and menial donor recognition. तो major donor 25,000 and above bronze pin है. Lead donor 100,000 and above आपका silver pin है. And $1 million जैसे आप देख रहे हैं gold pin है. ये क्लब रिकॉग्निशंस हैं. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि पर मेंबर एवरेज गिविंग जिनकी जो एनुअल बेसिस पे हर लेवल पे जिस लेवल पे होती है वहां पे क्लब गिविंग पैच जो है वो दिया जाता है. $50, $100, $250. दिस इज अनदर एरिया कि आप फोकस कर सकते हैं. MJF फेलोशिप पैच दिया जाता है जब 100% जो मेंबर्स है फर्स्ट टाइम कोई भी मेंबर जो है वो MJF ऑनर्ड होता है उस पर्टिकुलर क्लब में, तब ये दिया जाता है. ऐसे ही 100% मेंबर सपोर्ट पैच जब 100% members of a club they donate but at least minimum $50 तब 100% member support patch दिया जाता है recognition. 100% MJF banner and PMJF banners when all the club current club members they are MJFs तो आपको ये recognition इस level पे मिलता है. मॉडल क्लब रिकॉग्निशन मैंने मॉडल क्लब के बारे में समझाया था. ये 3 लेवल पे हैं. एक जब आप कमिटमेंट फॉर्म साइन करते हैं उस समय आपको एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन चेयरपर्सन की तरफ से और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. फिर एक रिकॉग्निशन आपको जब आप अचीव करते हैं अपना गोल, और एक जब आपके सारे कमिटमेंट्स और प्लेजेस फुलफिल हो जाते हैं तब ये प्लाक जो आप देख रहे हैं दिस विल बी गिवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कैंपेन. ये कैंपेन के एंड में प्लाक दिया जाएगा. हम इतने देर से बातें कर रहे हैं तो डोनेट कैसे करना है ये स्लाइड मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है. देयर आर वेरियस वेज जो डोनेट कर सकते हैं. जब मैं बोल रही थी आपको मेक इट इजी मेक इट मैनेजेबल, ये एक मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि अगर किसी को चेक देना है तो किस तरह से चेक और कहाँ भेज सकते हैं. कोई चेक नहीं देना चाहता है, सीधे डिपॉजिट करना चाहता है, तो आपके सामने डिटेल्स है यहाँ पे. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, प्लस lcifindia.org है जहाँ पे आप ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हैं जो ज़्यादा क्विक है. तो कोई अगर मंथली देना चाहता है तो हर मंथ आप जो है जाके और lcif.org पे डोनेट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन प्लीज. थैंक यू सो मच. Yeah, first and foremost, I would like to thank our multiple district 322 for exclusively organizing this LCIF schooling for district 322G and giving us an opportunity to know more about LCIF and the new happenings. Thank you, our multiple district 322. Next, I would like to thank our past international director, Madam Sangeeta ji, for sparing your valuable time and accepting our request to be the chief guest for the evening. Thank you, ma'am, for joining and inspiring us to do more virtual fundraising programs instead of physical programs. Ma'am, we will surely try to explore new ideas of fundraising through virtual mode and will share ideas even with you. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to thank all our eminent speakers, PID Past International Director G.S. Hodaji, LCIF Constitutional Area Leader, PMCC Rajiv Lochanji, LCIF Area Leader, PMCC Kamal Kumarji Kedia, MD 322 Campaign 100 Coordinator,
Madam Rashmi Wills, LCIF Deputy Head Resource Mobilization. Thank you all the eminent speakers for sparing your valuable time, delivering highly inspiring deliberations, and giving us an in-depth knowledge on LCIF goals, Campaign 100 and model clubs. Thank you so much, eminent speakers, for a very fruitful interaction session and answering to all the queries of the Lions of our district. Really, thank you so much, all the eminent speakers. Lastly, I would like to thank all the participants from other districts and also from our district for joining this LCIF schooling and making it highly successful. Thank you so much, everyone. Have a very pleasant evening. Thank you.